Good afternoon, everyone. Welcome to the demo session regarding the EPFO crash course, which Aspire is providing to you people, and all of you are welcome. In this session, our team are trying to provide you the methodology, what exactly we are adopting for these batches, what material we are recommending, what is our teaching methodologies, what exactly was the pattern in the last few examination which EPFO or UPSC conducted, and what should your approach for this examination 9th of May. So first of all, remember one thing, that this is examination in which they are taking the PT examination type of paper comprising of 120 questions, and directly to that, if you qualified, you will go to the interview board of UPSC, and then in front of it you can give the interview by calculating the 75% and 25% weightage, or 70 or 30%, maybe 20, 75, 25% weightage. They can prepare a merit list and you can become one of the officer in this country. So there are two type of jobs. One is there's a commissioner job, and this job is belong to EO and FO, that is enforcement officer and provident fund officer. And somehow it is a gazetted, that is the officer, and this year more than 400 seats are there. So I want that you people cannot be greedy about your, that is money. It is all about the time. Through this batch, we can maintain your discipline. And every day, if you devote around 5 to 6 hours with us, this is our overall, that is a promise, that if you rigorously follow our overall directions, you will qualify this examination without any type of hurdle. We just want your commitment, nothing else. Clear? Now, please, what exactly would be the strategy? Now there are so many YouTube videos nowadays on the YouTube channel. If you search, it is about everything. कुछ भी minute चीज़ अगर तुम ये भी डालोगे, बाल कैसे टूटते हैं, कैसे ग्राफ्ट होते हैं, इस पे भी वीडियो मिल जाएगा. अगर रात बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाए, ऐसे डाल दो आम पापड़ कैसे बनता है, वो भी वीडियो मिल जाएगा. अगर ये डाल दो कि प्याज कैसे उगानी है, इसका भी वीडियो मिल जाएगा. तो इसका मतलब लोग खाली हो चुके हैं लॉकडाउन में, एंड वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वीडियोस. तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द discredit of anybody, but I am telling you the true strategy without any type of self-interest, that you should be fearful about industrial relations. Oh, it is only in Aspire, okay, we can join it. No, it is about overall strategy. So first we can know about what is strategy and what is the role of strategy. So first understand this thing, what is a common thing which everybody can do, and there is a high chances that you cannot do. So this section mainly belong to the CSET part of the UPSC examination and EPFO examination, quant, general arithmetic or mathematics, and general English. This section approximately is providing 30 to 35 questions compulsory. बढ़कर 40 तक भी हो सकते हैं. And now in this section, so many people are not somehow good. UPSC has their own reservoir from which they are asking the regular questions. The UPSC is asking this particular type of question from their own CDS examination paper, ACPF, that means Central Police Forces examination, जिसको आप assistant commandant भी बोलते हो. And before 2010, all the UPSC preliminary examination paper, whatever the question were there, around 35 to 40 questions regarding the general arithmetic, they are asking. So we are providing these three important material, the overall emphasis upon these three section every day between, that is 3 o'clock to 5 o'clock, continuously 6 days, Monday to Saturday. Our major focus is that so many people are of that type who cannot provide a single mistake in this section. And I really want that my students who are trusting us, they can also make a single mistake in this particular section. And you can also maintain simultaneously your preparation of UPSC, because ultimately you can also do the practice of all these sums in the CSET paper also. And last year so many people disqualified because they scored less than 66 marks in the CSET paper. So it is a double bonanza for you people, that you people can also do. That's a CSET plus EPFO preparation. तो इसके ऊपर कोई भी एम्फोसिस नहीं कर रहा है, और वो मान के चल रहे हैं, दे assume this thing that you people are automatically good in this three section, that's why they are not providing emphasis, but we are providing you, because this thing only required one important dimension, practice, and through that you can do the practice of all these three paper conducted by UPSC. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक आगे चलते हैं. Then 4 segments which are very important.
The first segment is industrial relations. Now this is a very important segment. यहाँ से 15 to 22 questions तक का scope है. Minimum 15, maximum 20 to 25 तक question आएंगे. Now this industrial relations are comprising of so many things. ये definitions क्या होता है, scope क्या होता है, approach क्या होता है, industrial dispute जहाँ से UPSC में भी question आए. तो nowadays they are also asking the questions from this segment industrial relation in the UPSC also. So you people cannot miss. And we are taking a specialized person for that particular type of section. So here the CA Vaibhav, that's the Maheshwari are teaching you so many good dimension with proper explanation, slides, explanation, dictation, and we are providing you the authentic material of IGNOU as well as the Indian Institute of Chartered Accountant and their website, some of the terminology we are teaching from that particular part. Then second part is journal accounting. Now this exam itself belong to the accounts. You should know only the minimum basic terminologies about the balance sheets, profit and loss account, what entries are coming under debit, what entries are coming under credit. This section is providing around 10 questions. तो अगर हम एक average लेते हैं तो around 30 to 35 questions are coming from this section. Quant 30, this section 30, the overall average is 50% of the paper are comprising of this, and this segment is very important to qualify, otherwise you can never qualify this EPFO examination on 9th of May. तो इट इज नॉट अबाउट वी आर रीडिंग द लक्ष्मीकांत. बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के नाम पर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं. दे आर टेकिंग सम स्मॉल बुक्स ऑफ EPFO विच आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द स्टेशनरी शॉप, जहां पर 4 पेजेस में इंडस्ट्रियल रिलेशन खत्म हो गया, 5 पेजेस के अंदर लेबर लॉ खत्म हो गया, 6 पेजेस के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गया, 3 पेज में डेवलपमेंटल इशू खत्म हो गया, एंड दे आर डूइंग रिचुअल. तो इट इज नॉट अबाउट कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, इट इज अबाउट वेदर यू आर रीडिंग दिस थिंग एंड UPSC विल आस्क. This is the main question and we are doing this thing. Clear? So 60 to 65 questions, around 50% are covering by these 5 topics, and our major emphasis on that particular type of section. Now and nowadays computer is also important. So computers and their terminologies plus science and technology. So nowadays they are increasing the weightage of science and technology. These 2 sections are again having the potential of 15 to 20 questions. Now this section is also taught by one of the MSc student in our classes, Mohit, and Mohit give emphasis upon the slides and the terminology system after the analysis of 4-year paper which are already available on our website www.aspireias.com. तो हम लोग फिर से आपका grip इस पर बनाएंगे, that is computer as well as science and technology. After that we are moving to traditional parts, social security, developmental issues, economics, polity एंड मॉडर्न इंडिया. इसमें सबसे खतरनाक मॉडर्न इंडिया पूछते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस अगेन. एंड इन मॉडर्न इंडिया वी आर प्रोवाइडिंग यू वन ऑफ द बेस्ट, there's a teaching from a person who had himself one of the job optional in the form of history optional, and he is in a condition to give you the elaboration about all the topics of modern India, और 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे. तो अगर हम इस सेक्शन को हटा भी देते हैं तो 100 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए इन ऑल दिस पार्ट. रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस आपके इन 4 डायमेंशन में से आएंगे, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पॉलिटी. अब आपको फर्क समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस 20 क्वेश्चन प्रिपरेशन, maximum 40 question preparation or 50 question preparation, but we are giving you the systematic elaboration about all these things according to the priority that you people can have sufficient amount of time for practice. Even we are providing you 3 to 4 composite paper and you can solve it. Clear? यहाँ तक आपको सबको बात समझ में आ गया होगा. अब आगे चलते हैं हम लोग. What is our schedule which is moving? So everybody should know about the schedule of the classes which are starting from tomorrow, that is 1st of March. तो मंडे टू सैटरडे एवरी डे, मंडे टू सैटरडे एवरी डे between 3 to 5 p.m. you people can do quant and mathematics. After few minutes the faculty of mathematics and quant can elaborate what exactly, but I am providing the time schedule. Now another, that is our 3 days, Monday, Wednesday and Friday. लिख लीजिए आप सब लोग, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे जर्नल अकाउंट्स classes will start. When general accounts will over, then industrial relations will start, and when industrial relation will over, labor law will start. These 3 days will be fixed that you can read and revise, read and revise. That is Monday, Wednesday and Friday. Then Tuesday and Thursday, Tuesday and Thursday you will do computer science and then science and tech. So these 2 days are fixing for
that is computer science and tech, that is Tuesday and Thursday. And Saturday belong to me. First we can do social security, and then we can do developmental issues, current affairs in a sequence manner. एंड इन द लास्ट पॉलिटी वी कैन डू. लेकिन फर्स्ट से पहले हम सोशल सिक्योरिटी करेंगे क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स, एंड आई कैन टेल यू द मेथड टू रिवाइज इट. So this is the method we are proceeding. 6 days fixed for quants and mathematics and general English, and it will proceed for around 24 to 25 days. That means the whole March month. Simultaneously the second session will start 12 to 2. ये session चलेगा 12 to 2, maximum 2:30 PM. तो ये 12 से 2 वाला session बता रहा हूँ, ये 3 से 5 वाला, और हर रोज ये 2 session चला करेंगे आपके, to give you the overall that's the efforts and the threshold, ताकि आप इसको अच्छे से कर सके. और 12 से 2 में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वैभव महेश्वरी लेक्चर फिक्स हो जाएंगे आपके, जनरल अकाउंटिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज. और उसके बाद ट्यूसडे एंड थर्सडे बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस एज वेल एज साइंस एंड टेक, एंड देन सैटरडे आपका सोशल सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड करंट अफेयर्स. नाउ you should not skip any session because so many people are feeling it, हमें आता है, I can do ourselves. No, if you are trusting us, even you are knowing it, just listen it carefully. 2 घंटे कोई भी चीज सुनने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज हियर वी आर प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिवीजन एंड द क्रैश कोर्स फॉर्मेट. तो इट कैन नेवर बी ट्रबलिंग यू एंड 100% इट कैन हेल्प यू. तो इस चीज को आप यहां पर याद रखेंगे. क्लियर? तो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ द क्लासेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. Now, what is our methods of teaching and how we are teaching you? So first remember one thing, we are providing so many things on our Aspire portal. So everyone please open the Aspire IS, that is the website www.aspireis.com. If you open www.aspireis.com, everyone, on the first page, that is the home page, just click on EPFO crash course. तो जैसे ही आप EPFO crash course पर click करते हैं, please click on EPFO crash course. तो जैसे ही आप EPFO क्रैश कोर्स पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर एक ही सेक्शन आ रहा है, दैट इज EPFO क्लासेस, क्रैश कोर्स क्लासेस. यहीं पर अब टेस्ट सीरीज का भी कॉलम जुड़ जाएगा आफ्टर सम टाइम, एंड यू पीपल कैन आल्सो एनरोल इन द टेस्ट सीरीज. क्लियर? तो इन द EPFO क्लासेस, इफ यू आर गोइंग बिलो, दिस आर अवर चैनल जिसमें हमारा मटेरियल अपलोड होगा, आप मटेरियल भी देख सकते हैं. मेनली दैट इज दिस वन, ज्वाइन एस्पायर आईएएस प्रीलिम चैनल ऑन टेलीग्राम, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के अंदर EPFO का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा. Now here is UPSC EPFO previous year question paper analysis 2015-17, and it is a subject wise analysis of English, quantitative aptitude, history, और upcoming time we are providing you much more. तो अगर हम 2017 का पेपर खोलेंगे, तो here is 2017 paper of EPFO, and you will easily analyze कि what exactly they are asking and what exactly they are not asking. तो here is EPFO previous year paper, यही आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा. तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हो. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इंग्लिश का पार्ट है आपका, ये पूरा भी इंग्लिश का पार्ट चल रहा है स्टार्टिंग में. ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द इंग्लिश पार्ट. तो अगर आप देख रहे होंगे इनका सेक्शन बिल्कुल फिक्स है, 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं. देन दे आर आस्किंग अबाउट द ओवरऑल हिस्ट्री पार्ट, कि हिस्ट्री में भी कैसे क्वेश्चन पूछता है. इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द स्टडी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसने लिखा. फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन. फिर विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया. तो हिस्ट्री के अंदर भी दे आर नॉट आस्किंग लाइक द यूपीएससी हिस्ट्री, दे आर आस्किंग अ लिटिल बिट फैक्चुअल टाइप ऑफ हिस्ट्री, जिस पर हम पूरा एम्फोसिस करेंगे. Now so many people already learned from me, they are knowing my methodology too. There is a teach, I can explain my methodology. Suppose the current affairs we are teaching. Now suppose I am teaching about the BRICS summit, or I am teaching about the SCO, Shanghai Cooperation Organization. So in the Shanghai Cooperation Organization, first I can talk about what exactly are the countries. So here we can show the atlas, so everybody should have the atlas. The Shanghai Cooperation Organization including all the Central Asian countries except तुर्कमेनिस्तान. तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है. देन अदर कंट्रीज आर रशिया एंड द चाइना. रिसेंटली वी इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया. The overall observation status belong to Iran. Iran also want to become the member of SCO. Then last 2 summits of SCO, the present summit of SCO and the future summit of SCO. Then exclusive mechanism like RETS, regional anti-terrorism strategy, and whatever material I am teaching, all the material are available over the internet or in the form of PDF and other files which we are uploading over the portal.
We are providing both type of classes. One is offline. Offline classes are on of Aspire. Our address is 23/49 basement. You people come directly attend the class because I am not follower of the online classes. Direct interaction and attention should be very high when you are coming to the offline classes, and we are providing the offline classes with the proper care of COVID also. So don't worry, our classes are purely properly sanitized, and we are maintaining each and every, there's a classes with a gap of one chair, and you people can come and enjoy the classes in a good manner. So we are now introducing our own faculty team, and one by one our faculty team can demonstrate how they are teaching and what exactly their syllabus is comprising of. So I am welcoming my all the there's a team member. First, Vaibhav Maheshwari. Vaibhav Maheshwari is teaching you about the general accounting principle as well as this industrial law. After Vaibhav session, the Mohit session will start regarding the computer and the computer related terminologies and general science, and after that Pratik session will start regarding history as well as that is general mental ability and other type of quantitative aptitude, and they can demonstrate. And stay tuned and be sure and be happy. It is not about the money, it is about your success that we are creating this batch for the first time after the request of you people only. Thank you so much. Please welcome Vaibhav Maheshwari. Good evening, everyone. My name is Vaibhav Maheshwari, and welcome to our EPFO, Enforcement Officer and Accounts Officer lectures for Written Exam 2020. I am your faculty for General Accounting Principles and Industrial Relations. This is an initiative by Aspire IAS, and I am a Chartered Accountant by qualification. I have done my Chartered Accountancy in 2017 with an All India rank 16 in CA Finals, and I have been studying accountancy for the last 10 years now. So I have quite some experience, and also industrial relations. It was a subject that I studied as part of my commerce and accountancy in UPSC civil service examination. So I have experience in both, and I can tell you that what exactly is important and what exactly is not important for the 9th May examination of EPFO. So let's start. Our agenda for the demo class today is, first we can discuss about the importance of accounting for EPFO. So accounting, as you know, that this exam is mainly for the accounts officer and the enforcement officer position who are responsible for enforcing the laws and who are responsible for maintaining the overall accounts of EPFO. Because as you know that this is a social security organization, and so many people, poor people, underprivileged, women, and vulnerable sections are investing their money into the EPFO. And they are counting on you. When they become old, they want the organization to give them money, to give them pensions. So this makes your role very, very important, and consider yourself very privileged if you are selected for this post, and do your duty with full diligence. So accountancy is something that will help you not just for this examination, but something that will help you throughout your life when you are serving in this prestigious position. So what is the syllabus? Now, sir, what happens is that general accounting principles, उसके अंदर लिख दिया UPSC ने नोटिफिकेशन में कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया. लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं आता, क्योंकि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सिर्फ एक चैप्टर है पूरे उस सिलेबस के अंदर. तो यूपीएससी ने बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ को छुपा के रखा कि हम पूछने क्या वाले हैं. तो 10 से 15 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में से आएंगे आपके लिए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से. और इसका सिलेबस जो आप देखेंगे, हमने जो पिछले 6-7 अटेम्प्ट्स के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके फाइंड आउट किया दैट द सिलेबस मेनली बिलोंग्स टू द बीकॉम प्रोग्राम सिलेबस ऑफ इग्नू. तो हमने वहीं से आपका सारा मटेरियल डिज़ाइन किया है, वहीं से आपको हम पढ़ाएंगे, उन्हीं में से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाएंगे. पूरा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मार्क करवाएंगे, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. सो आई कैन शो यू द सिलेबस. तो सर सबसे पहले हमारा सिलेबस में आता है ब्लॉक 1 विच इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख सके. So first is theoretical framework. Now sir, this block 1 is the most important part of your syllabus. अगर आपने ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मतलब आपके
10 में से 7 क्वेश्चंस यहीं से पूरे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे सर, फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, विच इज जर्नल लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर हमें सिर्फ फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर यही है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हमारा थर्ड ब्लॉक आता है विच इज़ फाइनल अकाउंट्स। इसके अंदर हम ज़्यादा फोकस करेंगे डेप्रिसिएशन पे और फाइनल अकाउंट्स के क्या फॉर्मेट होते हैं, पीएनएल अकाउंट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट मैनी ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम द अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, तो आपको ये सारे टर्म्स बहुत नए नए लग रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये टर्म्स जितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल सा है और बहुत जल्दी ये समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 3-4 दिनों के अंदर जो आप पढ़ेंगे उससे आप 80% 90% एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इस सब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो आप दिन रात अपना लगा के लेबर लॉस पढ़ लो, कुछ कर लो, लेकिन उसके अंदर उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। अकाउंटेंसी के अंदर आपको 80% 90% एक्यूरेसी मिल जाती है। इसके बाद सर आपका हायर परचेज इनलैंड ब्रांचेस, इसके अंदर सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत है, उनको रट्टा मारना पड़ेगा और वो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके अंदर। इसके बाद कंसाइनमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स, इसके अंदर भी सिर्फ जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है कि परचेज के समय क्या जर्नल एंट्री होती है, तो वो जर्नल एंट्रीज बकायदा 2-4 पेजेस के अंदर आपकी खत्म हो जाएंगी। तो पूरा 70 पेजेस का जो स्टडी मटेरियल है उसको मात्र 2-4 पेजेस के अंदर मैं कंसोलिडेट करके आपको बता दूंगा, उसी को बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है विच इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ऑल्दो कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि हो सकता है कि 2021 में पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे कि 2017 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। इसके बाद आता है कि सर हमारा क्लास का टीचिंग पैटर्न और क्लास की डिटेल्स क्या रहेंगी। तो जैसा कि सर ने अभी डिस्कस भी किया था, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक। उसके अंदर मैं पहले आपको 3-4 दिन के अंदर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करूंगा। मटेरियल हमारा इग्नू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ही मटेरियल होगा, उसी से मैं आपको मार्क करवाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें से आप अपने नोट्स को बनाएंगे, अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे और उसी से बार बार आप रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा क्लास का टीचिंग पैटर्न रहेगा। क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा, टर्मिनोलॉजी पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। कोई भी डाउट आपको होगा उसके अंदर आप अपना हाथ रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट हो कभी भी आपको, तो क्लास के अंदर हम डाउट्स इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे बेसिकली। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर जनरली हमारे कि अगर हमने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ रखा तो क्या मेरे लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आप अपनी पॉकेट मनी का हिसाब रखते हो वैसे ही आपको अकाउंटिंग के अंदर भी हिसाब रखने की जरूरत होती है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन एन अकाउंट्स ऑफ योर ओन पॉकेट मनी, सो पुट योरसेल्फ एंड दिस सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इजी। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन कि सर हमने पहले कभी ये सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने के अंदर क्या हो जाएगा। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी और ये आपका 2 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरह रेडी हो जाएगा, चाहे आपने पहले इसके लिए पढ़ाई करी है या नहीं करी है। लेकिन ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे, सो डिवोट योरसेल्फ टू दिस। Then what do I expect as a teacher and what do I expect from you? If you are studying the subject, what do I expect? I expect you to follow 2 golden rules. Number 1 is to do your daily work daily and रोज का काम अपना रोज पूरा करना, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो उसको पूरा करना, क्लास के अंदर ध्यान से सुनना और जो आप सुनोगे उसके अंदर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से जरूर पूछना। So this would be my expectation from you when you join this class. What book should I refer? तो आपके लिए सिर्फ 2 स्टडी मटेरियल है जो हम प्रोवाइड करेंगे, वही उसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। हम आपको 2 स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इग्नू का और एक ICAI के स्टडी मटेरियल का, जो कि हमने कंपाइल किया है, राइट। तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागना, ये मत सोचना कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कम पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज करा हुआ वो आपको ज्यादा नंबर देगा। देन हाउ डू आई प्रिपेयर नोट्स फॉर अकाउंटिंग? तो वेरी सिंपल टेक्निक, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ पीटी पॉइंटर नोटबुक। जो मैं आपको पीटी लिखवाता जाऊंगा नोट्स में से, उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर जॉट डाउन करते जाएंगे एंड उसी को बार बार रिवाइज करते जाएंगे। इसके लिए कोई भी अलग से आपको बुक खरीदने की या कुछ ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसीजर रहेगा। देन हाउ टू रिवाइज?
सो रिविजन के लिए सर, रिविजन के लिए हम आपको ये ऐसे इंडेक्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये सीए फाउंडेशन का एक इंडेक्स है। तो इस तरीके से आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके सब टॉपिक्स की पूरी डिटेल लिख रखी होगी। ऐसे ही आपको अपना रिवीजन के 4 पेजेस बनाने हैं, उसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स लिखने हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखा है, यहाँ पे आपको अपना कोड वर्ड छोटा छोटा सा लिखना है और इसी के अंदर आपको अपने नोट्स को बनाते जाना है। सो अल्टीमेटली आपके पास अकाउंटिंग के, जब आप लास्ट में रिवीजन करने के लिए बैठोगे, आपके पास अकाउंटिंग के लिए सिर्फ मात्र ये 4 पेजेस होंगे, ये टॉपिक्स लिखे हुए होंगे और इसी के अंदर से आपको रिवाइज करते जाना है। सो मैं आपको इतना केपेबल बना दूंगा इसके साथ साथ कि आप ये करने में सक्सेसफुल होगे, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे ये बनते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा इंडेक्स रेडी हो रखा है और आपको इंडेक्स के अंदर कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आपको फिल करते जाना है अपने अकॉर्डिंग। तो सर इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं तुक्का मार के इसको पूरे पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मेरा गेस वर्क आज तक तो किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ है ना, तो क्या मैं इस एग्जाम में भी बिना पढ़े चले जाऊं और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेकर चलना कि ये एग्जाम बिना पढ़े निकल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम टेक्निकल नेचर का है। अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर बनने वाले हो तो आपसे कुछ टेक्निकलिटी एक्सपेक्ट की जाती है और इस एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि बिना पढ़े ये एग्जाम निकल जाएगा। रिविजन करना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर एस्पायर आईएएस आपकी पूरी कोशिश करेगा कि आपको टू द पॉइंट, क्रक्स पॉइंट पढ़ाएं और उसी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो और उसी को आप अपने एग्जाम में अप्लाई करते हुए चले, राइट। तो ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होके जाना अपने को कि ये एग्जाम गेस वर्क से निकल जाता है। मैंने तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी गेस वर्क से निकाल रखा है, वो भले ही निकल जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जनरल स्टडीज आती है और न्यूज़पेपर हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एग्जाम में अपने को थोड़ा सा टेक्निकल जाना पड़ता है और बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। So golden rules: complete your work daily and pay attention to the class and ask doubts, right? So let's start with today's class. So first, today we can start with the introduction to accounting. What is the nature and scope of accounting? Sir, what kind of questions can be asked from here? So basically they may ask you that what are the objectives of accounting. वहाँ पे 4 points दे देंगे, उस point में से ये पूछ लेंगे कि which one is not an objective of accounting. So we can cover from here. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली बुक से लैंग्वेज उठकर आ जाती है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बहुत सिंपल है, बस याद करने की जरूरत होगी, राइट। फिर पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग अपन बता देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। देन व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूअल बेसिस क्या होता है। सो दीज थिंग्स मे बी आस्क्ड एंड वी कैन डील विद दीज टॉपिक्स वन बाय वन। सो अकाउंटिंग, this is a short form for accounting that we use generally. What is accounting? Accounting, let's say, जो भी आप पैसा लेते हो, for example, you get pocket money. Pocket money of, let's say, 30,000 rupees. Right? तो ये pocket money आपको आपके पेरेंट्स ने दी एक महीने के खर्च के लिए. So you get this for 1 month, per month, right? Now you spend this money, let's say कि आपने ऐसे एक अपना अकाउंट बनाया, इसी को हम यहाँ पे ऐसे अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाता है डेबिट, यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट। लेट्स से दैट दिस इज कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट का हम बना रहे हैं। सर डेबिट क्या होता है, सर क्रेडिट क्या होता है? डेबिट मतलब जो मेरे पास आ रहा है, जो मुझे मिलेगा उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो मैं दूंगा उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो लेकिन सर जैसे हम बैंक में तो सुनते हैं कि क्रेडिट मतलब अच्छा होता है क्योंकि क्रेडिट हमें मिल रहा होता है, और डेबिट मतलब हमारे अकाउंट से कुछ जा रहा होता है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि आप ए हैं और यहाँ पे आपका बैंक है। अब बैंक जब आपको पैसा देता है, बैंक आपका पैसा क्रेडिट करता है, और जब बैंक आपसे पैसा लेता है तो बैंक आपको क्या करता है, डेबिट करता है। तो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है कि मैंने ए के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, यानी कि ए को मैंने कुछ दिया। और जब बैंक आपसे कुछ लेगा तो बैंक बोलेगा कि मैंने ए को डेबिट किया, यानी कि ए से कुछ मैंने लिया। तो इसलिए डेबिट ऑलवेज व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे यहाँ से क्या जा रहा है उसे मैं क्रेडिट करता हूँ, और क्रेडिट द गिवर, राइट। सो डेबिट एंड क्रेडिट। लेट्स से कि आपने यहाँ पे पॉकेट मनी लिखा 30,000 रुपीज। अब जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपना हिसाब मेंटेन नहीं करते हैं। लेट्स से कि आप बहुत ही केयरलेस किस्म के स्टूडेंट हो और अपना पॉकेट मनी का हिसाब नहीं रखते। आप सोचते हो कि पापा के पास खूब पैसा है तो विदाउट किसी अकाउंटेबिलिटी मैं उसको स्पेंड करते रहता हूँ, ठीक है। तो आपने लेट्स से इसको खर्च किया फूड के अंदर, आपने लेट्स से 8,000 रुपये खर्च कर दिए एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आपने रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया लेट्स से 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेट्स से अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कुछ स्पेंड किया, लेट्स से आपने 5,000 रुपीज़ अपनी गर्लफ्रेंड पे स्पेंड कर दिए। फिर आपने कहा कि चलो मैं कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कोचिंग की फीस भी आपने पे कर दी। लेट्स से कि आपने 12,000 रुपीज़ की कोचिंग की फीस स्पेंड कर दी। अब ये आपके खर्चे हैं, लेकिन जब मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आता है 8,000 प्लस 15,000 23,000, 23,000 प्लस 5,000 28,000, और प्लस 12,000 40,000। और आपके पास पॉकेट मनी कितनी थी? सिर्फ 30,000। अब आप जब अपनी कोचिंग की फीस भरने जा रहे थे तो आपने देखा कि मेरे पास 12,000 रुपये तो है ही नहीं, मेरे तो 12,000 रुपये में से सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं। तो अब आप अपने फादर को फ़ोन करते हो कि पापा पापा मुझे 10,000 रुपये और चाहिए, मुझे अपनी कोचिंग की फीस पे करनी है। तो आपके फादर आपसे पूछते हैं कि भाई मैंने जो पहले तेरे को 30,000 रुपये दिए थे मुझे उसका हिसाब दे, कि भाई ये 30,000 रुपये तूने कहाँ खर्च किए, वेयर डिड यू स्पेंड दिस 30,000 रुपीज, बिकॉज 30,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब आप कहते हो कि पापा वो तो मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई स्पेंड दिस मनी, राइट। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि बच्चे बता ही नहीं पाते कि मैंने कहाँ पे स्पेंड किया, और पापा जो हैं वो फिर ट्रस्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या वहाँ पे अय्याशी कर रहा है ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, हर चीज का आपके पास रिकॉर्ड है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट आसानी से किया जा सकता है। इफ यू आर नॉट हैविंग द रिकॉर्ड तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ मेथड of systematically maintaining a sequence of your transactions during an accounting period। यहाँ पे हमारा accounting period क्या था? 1 month। तो आपके एक systematic तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है chronological manner में, और आपको ये पता चलता जाता है कि आप पैसा कहाँ पे खर्च करते जा रहे हो, and this helps you in your decision making। For example, अगर आप नेक्स्ट मंथ से अपना अकाउंट मेंटेन करने लगते हो तो आप रिकग्नाइज करते हो कि फूड पे आई डोंट नीड टू स्पेंड 8,000, फूड के ऊपर 6,000 स्पेंड किया हुआ ही काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो गर्लफ्रेंड के ऊपर 5,000 नहीं, ओनली 2,000 रुपीज इज सफिशिएंट। फिर आप कहते हो कोचिंग की फीस जो है 12,000 की नहीं, आई विल ओनली गो फॉर अ कोचिंग दैट गिव्स मी ओनली 10,000 रुपीज का कोचिंग, राइट। सो यू ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस बिकॉज लास्ट मंथ यू recognize your mistake, right? So accounts also helps you learn from your mistakes, right? So अकाउंट्स को सिर्फ ऐसे मत देखो कि इट इज ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर भी होगा। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको इसके थ्रू डेबिट भी बताया, क्रेडिट भी बताया, कैश अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। So now we can come down to what is the definition of accounting. What is the need for accounting? As I mentioned कि आपके पास 2,000 रुपये हैं, आपके पास एक महीने का टाइम है, आप रोज स्पेंड कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया, इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि हम उस पैसे का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? सो accounts helps you keep systematic records to systematic record of various assets and liabilities, and it also helps you ascertain the net effect of business operations which is the profit and loss of your business। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से कि आप एक बिजनेस चलाते हो, राइट, और
आपके बिजनेस के अंदर आपकी कुछ सेल्स होती हैं, लेट्स से 3 लाख रुपीस का आप सेल करते हो। इस बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इस बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। लेट्स से कि 2,50,000 के आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स मेरी हुई 3 लाख रुपीस की, एक्सपेंसेस मेरे हुए 2,50,000 के, मेरा प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इज ₹50,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपीस का। अब क्या ये प्रॉफिट एक किसी इन्वेस्टर का है, क्या ये एक ओनर का प्रॉफिट है? ये आपका प्रॉफिट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव अर्नड, है ना, ये आपकी अर्निंग्स हैं फ्रॉम द बिजनेस। तो इस अर्निंग्स को हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। सर ये पीएनएल अकाउंट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट होता है कि आपने जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शंस करी, उसका नेट रिजल्ट क्या निकला। पीएनएल आपको ये दिखाता है, आपने पूरे साल में सेल्स करी 3 लाख रुपीस की और एक्सपेंसेस आपके थे 2,50,000 के। नेट रिजल्ट आपका क्या निकला कि 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, किसी में 12,500 का हुआ, किसी के अंदर लॉस भी हुआ होगा, लेकिन नेट नेट रिजल्ट आपका क्या निकला कि 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। सर तो ये बैलेंस शीट मेरे को क्या दिखाएगा? बैलेंस शीट आपको दिखाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या था? ये नेट रिजल्ट था मेरे ऑपरेशंस का ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट मेरे को दिखाता है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एज ऑन अ डेट, कि आज अगर मैं यहां पर हूं तो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या ओन करता हूं, मेरे हाथ में क्या ओनरशिप है, क्या एसेट्स है मेरे पास। और दूसरी साइड ये मेरी लाइबिलिटीज को दिखाता है। सो वन साइड आई हैव सर्टेन लाइबिलिटीज। सर व्हाट इज लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज इज समथिंग दैट वी आर ओइंग टू समबडी, यानी कि ये मेरा कुछ ऐसा उधार है जो मैं दूसरे को मेरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने दोस्त से कुछ उधार पैसे लिए अपने कोचिंग फीस को जमा करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज का हमारे पास कैश का शॉर्टफॉल आ रहा था, तो हमने अपने दोस्त से बोरो करके 10,000 रुपीज और कोचिंग की फीस जमा करवाई। सो दैट बिकम्स माई लाइबिलिटी, यानी कि वो मेरी लाइबिलिटी है, समथिंग दैट आई ओ टू द अदर्स, ये मेरे को उन्हें फ्यूचर में देना पड़ेगा। और दूसरी साइड मेरे आते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी। अगर मैं इस एसेट को आज बेच देता हूं मार्केट के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा? तो अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मुझे मिलता है वो डेबिट होता है और जो मेरे को देना होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहां पर आपके एसेट्स हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज क्या होंगी? हमेशा क्रेडिट होंगी। तो ये कभी नहीं भूलना, जो मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा वो क्रेडिट होगा यानी कि लाइबिलिटीज, और जो मुझे मिलेगा फ्यूचर में वो एसेट्स हो गए मेरे। तो यहां पर जो मेरी लाइबिलिटीज है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर, यहां पे ये मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप मेरे टीचिंग स्टाइल को एक नोट करना जरूर से कि मैं आपको एक साथ बहुत मल्टीपल चैप्टर्स के थ्रू घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप बुक खुद से पढ़ोगे तो फिर आप अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर अंदर से कुछ पार्ट्स उठा रहा हूं ताकि एक लिंकेज बनती चली जाए और आपको स्टोरी की तरह वो समझ में आता जाए। तो अभी हमने सर देखा कि मेरे पास प्रॉफिट बिजनेस का 50,000 रुपीज था, है ना? देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। यहां पे मैंने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। आप जब भी नोटिस करोगे बैलेंस शीट में, कभी आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा
कि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। आप कहोगे कि सर बिजनेस तो मेरा है और मैंने तो प्रॉफिट अर्न किया है, और आपने बताया था कि जो मुझे मिलता है वो तो डेबिट होना चाहिए और लायबिलिटीज तो बल्कि क्रेडिट होती है, तो ये प्रॉफिट क्रेडिट क्यों हो रहा है सर? तो क्वेश्चन बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूं, और ये आपके सिलेबस का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम बोलते हैं डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो कि आप हो ए और ये है ए का बिजनेस। आप कहोगे कि सर ये कैसे बेतुकी सी बातें कर रहे हो, ए और ए का बिजनेस अलग थोड़ी है, मैं तो खुद का बिजनेस चला रहा हूं तो ये बिजनेस मेरे को बिलोंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में ए एक अलग इंडिविजुअल है और ए का बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल है। दीज बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग के अंदर ये मान के चलते हैं हम कि चाहे ए खत्म ही क्यों ना हो जाए, है ना, ए बिजनेस को एग्जिट ही क्यों ना कर जाए, लेकिन ए का जो बिजनेस होगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो ए जो है और ए का बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो मान लो ए ने कुछ पैसा इस बिजनेस के अंदर लगाया, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगाए, राइट, और ए के बिजनेस ने ए को प्रॉफिट दिया 50,000 रुपीज का, राइट। तो यहां पर ए से आने वाला पैसा, ए से मुझे जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया? 10 लाख रुपीज, वो मेरा एसेट बन गया। जो मुझे ए से पैसा मिला वो मेरा एसेट बन गया 10 लाख रुपीज का, राइट। क्योंकि हमने कहा था जो मुझे मिलेगा एज अ बिजनेस, जो मुझे मिल रहा है वो डेबिट होगा, और एज अ बिजनेस जो मैं दे रहा हूं, जो मैं प्रॉफिट दे रहा हूं उसे, वो क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड एंड दिस विल बी डेबिटेड। और ये 10 लाख रुपीस का, अब यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां पर आपने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट, यहां पे आपने डेबिट कर दिया 10 लाख रुपीस को, राइट। तो अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे आपका टोटल कितना आ गया? 50,000। यहां पे कितना टोटल आ रहा है? 10 लाख। आप कहोगे कि सर नाम तो है बैलेंस शीट और यहां पे तो 50,000 और 10 लाख का कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये क्या चक्कर है? तो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं फॉलो करते, डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के, इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, डबल एंट्री। अगर हम डबल एंट्री नहीं करते तो आपका नेट रिजल्ट क्या आएगा? 50,000 और 10 लाख। आप कहोगे कि मुझे 50,000 का मैंने प्रॉफिट दिया है और एसेट जो है मेरे 10 लाख रुपीस हैं, लेकिन नाम क्या है? बैलेंस शीट। नाम के हिसाब से तो इसको इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड्स को, लाइबिलिटीज को और एसेट्स को इक्वल होना चाहिए। तो आप मेरे से पूछते हो कि सर ये इक्वल क्यों नहीं है? मैं आपको कहता हूं कि इसको इक्वल करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल 10 लाख रुपीस। जो ए ने 10 लाख रुपीस मेरे बिजनेस में लगाए वो ए कभी ना कभी तो वापस लेगा ना, क्योंकि ए तो मेरे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। जो ए ने मुझे 10 लाख रुपीस यहां पे दिए हैं मेरे बिजनेस के अंदर, वो मेरे लिए क्या बन गए? एक लाइबिलिटी बन गए। फ्यूचर के अंदर ये मुझे पैसा ए को वापस देना पड़ेगा जब ए अपना बिजनेस बंद करना चाहेगा, राइट। तो मैं यहां पे ए को एज अ लाइबिलिटी दिखाता हूं। क्या ये 10 लाख और ये 10 लाख मैच कर गए? क्या ये लाइबिलिटी और ये एसेट मैच कर गए? बिल्कुल कर गए। अब आप कहोगे कि सर इस प्रॉफिट का इम्पैक्ट एसेट साइड पे क्या आएगा? तो मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आप क्या दिखाओगे? 50,000 का कैश। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो भी ये 50,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कैश में हुआ है, आपके पास इतना एक्स्ट्रा कैश बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? मैच कर गया। तो आपका अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो कितना आएगा? 10 लाख एंड 50,000 रुपीज, राइट। बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा दोनों साइड पे?
10,50,000 rupees. तो अब आप समझे कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों मैच करती है। और वो क्यों मैच करती है? ओनली बिकॉज वी आर फॉलोइंग द only because we are following this double entry system of accounting. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो हमने यहां पे क्या क्या सीखा सर? हमने एक सीखा डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट और हमने सीखा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एंट्री, डुअल एंटिटी, डबल एंट्री, राइट? और हमने सीखा कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं। और बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता था? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, आज की डेट पर हमारे पास क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज हैं। So this is the overall crux of accounting. इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 क्लासेस डिस्कस करेंगे। मैं इसी तरीके से आपको चीज़ें मिक्स मैच करते हुए पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको वापस आपके नोट्स पर लेकर चलूंगा, जहां पर हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के अंदर रीडिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्क किया है, उसी तरीके से मैं आपको मार्क करवा दूंगा। आप अपने नोट्स के अंदर ये चीज़ें मार्क करके इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, राइट? तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूंगा। आप भी अपने नोट्स में साथ साथ क्या करते चले जाएंगे? हाईलाइट करते जाएंगे। जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना, राइट? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इस डेमो क्लास से शायद आपको समझ में आ गया हो कि अकाउंटेंसी वो नहीं है जो हम सिर्फ किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर जो हमने किसी और यूट्यूब लेक्चर के अंदर अभी तक सुनी होगी पीपीटीज के थ्रू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे और आपको ये सब समझ में आता चला जाएगा, ठीक है? जो आपको जो भी डाउट होगा तो हम उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे, राइट? तो ये एस्पायर का जो इनिशिएटिव है, इसका जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ ये है कि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो। 18 अप्रैल तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसे करेंगे। हम आपकी पूरी मेहनत सपोर्ट करेंगे इन ऑर्डर कि आपको याद हो चीज़ें। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया पैसिवली और आपने सिर्फ सुन लिया, नहीं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको 100% चीज़ें याद रहें और आप उसे बार बार क्या करें? रिवाइज करें। डिसिप्लिन मेंटेन होगा हमारी क्लासेस के थ्रू, और ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो होंगी उसके अंदर आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलेगा हमसे। कोई भी डाउट्स होंगे आपको वो तुरंत क्लियर हो सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन रीडिंग का भी ऑप्शन है, आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी सुन सकते हैं ऑनलाइन। फिर जब भी हमारी क्लास होगी तो आप क्लास के अंदर आके उसके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नाउ मोहित विल टेक योर सेशन रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस। थैंक यू सो मच and hope to see you in the classes. Good afternoon, everyone. Myself Mohit. I will be teaching you computers and general science for the upcoming EPFO exam. Now, हमें कंप्यूटर्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ाम के लिए वो तो ठीक है, बट आज के टाइम में हम ऑलमोस्ट हर काम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं। इवन अभी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये भी एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। हम रेगुलर फ़ोन यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर, जो कि काफ़ी शॉर्ट है, मतलब छोटा है। तो कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जनरल लाइफ के लिए भी है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए। तो ईपीएफओ एग्ज़ाम में कंप्यूटर कितना आता है? सबसे पहले कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी इजी होता है। 3 to 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, और 2 to 3 काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। तो अगली 2 से 3 क्लास में हम जितना भी कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, उससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंस दिस क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको फील होगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन भी वहाँ पे मिस हो गया। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम में? सबसे पहले वो लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है या सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके अलावा वो पूछते हैं कि वो जो कंपोनेंट है फंक्शन क्या करता है। और एडिशनली वो अलग अलग एक्रोनिम्स पूछते हैं जो कि कंप्यूटिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है या आईसी की फुल फॉर्म क्या है।
तो जो हमारा कोर्स कंटेंट है कंप्यूटर्स का, इन लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स इवोल्व कैसे हुए, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने क्या सोचा कि कंप्यूटर्स बनाना चाहिए, किस काम के लिए बनाया, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के, दैट विल इंक्लूड वेरियस हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स। उसके बाद हम कंप्यूटर्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आजकल हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उन सब के बारे में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, कि एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जैसे आज के टाइम में हम लोग कॉल करते हैं, तो फ़ोन वॉइस भी एक तरह का डेटा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो डेटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। और एंड में हम पढ़ेंगे कि आज की डेट में एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है कंप्यूटर में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, और आज की डेट में जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की तरफ इंडिया मूव कर रहा है, तो उन सब में इन सब चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो उनमें इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद सिर्फ ईपीएफओ में नहीं बल्कि और एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आएगा ये सब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंप्यूटर्स होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उनमें एक आउटपुट देता है। इसको आप ह्यूमन बॉडी से भी समझ सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, मैंने आपको एक कमांड दी, आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। अब इसमें आप इनपुट लोगे, इनपुट कैसे लोगे, तो उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए। अब ह्यूमन बॉडी में इनपुट का कौन सा डिवाइस है, तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस आपको अपने कान से सुनाई देगी, तो कान हो गया आपका इनपुट डिवाइस। अब आपने वो कमांड, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने वो कमांड अपने कान से इनपुट हुआ, अब वो आपके ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। तो आपके जो ब्रेन है वो आपका हो गया प्रोसेसर। उसके बाद अब आप प्रोसेस करने के बाद अब आप एक रिप्लाई करोगे। रिप्लाई कैसे करोगे, मुंह से बोलोगे, तो वो हो गया आपका आउटपुट। तो इस तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग तरीके से एक इनपुट होता है, जिसके अलग 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 हार्डवेयर होते हैं जिससे इनपुट होता है। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो एक आउटपुट देता है। तो ये हो गया बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम में हम एक फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, तो ये इवोल्व कैसे हुआ। तो किसी ने स्टार्टिंग में ये तो नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर को हम बनाते हैं ताकि एक दिन हाई ग्राफिक्स पे वीडियो गेम खेलेंगे या एक दिन वीडियो प्ले करेंगे। तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बेसिकली हम अब इसके वर्ड के मीनिंग से पता लग जाता है। कंप्यूटर है समथिंग दैट कंप्यूट्स। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो पहले टाइम में जैसे जैसे सिविलाइजेशन के बीच ट्रेड्स बढ़ा, तो ट्रेड के बीच जो कैलकुलेशन हो रही थी वो कॉम्प्लेक्स होती गई। तो उन्हें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो इस कैलकुलेशन को आसानी से करे और ऑटोमेटेड तरीके से करे। तो उसके लिए सबसे पहले 500 बीसी में अबाकस नाम का इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया गया। अभी अबाकस कैसे काम करता है, ये जो अलग अलग बीट्स हैं अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये 1 करता है, ये 10, ये 100, ये 1000। सो अगर हमें मान लो 112 काउंट करना है, सो व्हाट विल वी डू, यहाँ से एक बीट लेंगे 100 वाले में से, वो इधर कर देंगे, 10 वाले में से एक बीट लेंगे और 1 वाले में से 2 बीट्स ले लेंगे, 112 हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया और लिटिल बिट यू कैन से ऑटोमेटेड हो गया। उसके बाद जो मेजर इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर्स के अंदर वो हुआ एनालिटिकल इंजन, जो कि 1834 में चार्ल्स बेबेज नाम के बंदे ने किया। अभी ये एनालिटिकल इंजन क्या था, पहले तो इसका साइज़ देखो, ये एक ह्यूमन है, रिस्पेक्टिव में एनालिटिकल इंजन इतना बड़ा है। तो ये क्या था, ये एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कि इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा, डेटा को स्टोर करेगा और उसको एक आउटपुट देगा। अब जो पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि कंप्यूटर आज की डेट में क्या है, जो इनपुट दे रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसका आउटपुट दे रहा है। तो ये वाला उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी, जो इतना बड़ा एक मशीन था जो कि ये काम करने के लायक था। उसके बाद जो मेजर इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर्स में वो थी ट्यूरिंग मशीन, जो 1937 में एलन ट्यूरिंग ने की थी। ये क्या करता था, ये इसमें आप एक प्रोग्राम कर सकते थे, जो मशीन उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट देगा। अब इसकी ज़रूरत क्या हुई थी, ये 1937 है, वर्ल्ड वार के आसपास की बात है। तो उस वक्त अमेरिकन्स को जर्मन्स के सबमरीन्स का ट्रैक देखना था।
और उनका जो नेविगेशन के जो वो स्पॉट होते हैं वो जनरली एक कोड्स के हिसाब से होते हैं। तो उन कोड्स को डिकोड करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक प्रोग्रामेबल मशीन बनाया जिसमें आप कोई भी कोड डालो वो प्रोग्राम से सोल्व करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देता था शिप्स का। तो इसलिए इन्हें इसको जो है ये प्रोग्रामेबल मशीन बनाई गई। अब इसका इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, ये इससे पता लगता है कि हर साल ट्यूरिंग अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो मेजर इन्वेंशन हुआ वो हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट का। अभी तक जो भी हमने देखे कंप्यूटर्स मशीन्स उनका साइज़ बहुत बड़ा था। अब एक कमरे में एक सीपीयू आ रहे हैं, उसमें एक छोटा सा मॉनिटर है, उस पर आप काम कर रहे हो, तो काम करने में बहुत दिक्कत थी। तो उसके बाद बनाया इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी एक इंटीग्रेटेड सर्किट का एग्जांपल है, इसमें सीपीयू भी इसी में है, इसमें मेमोरी भी इसी में है कंप्यूटर की, और अलग अलग पार्ट्स कंप्यूटर के एक छोटे से सिलिकॉन चिप में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ सिग्निफिकेंटली कम हो गया, जिसकी वजह से उसके बाद IBM ने अपने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किए 1981 में, और 1984 में मैक ने किए, और धीरे धीरे ये सब चिप्स जो है और छोटी होती गई, और आज के टाइम में हम लोग फ़ोन को भी एज अ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब जब हमने इवोल्यूशन देखा तो ये आपके इसमें से आपके एग्ज़ाम के क्या काम आएगा। तो इसमें वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, वो तो आपको याद भी होना चाहिए जब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हो। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्यूरिंग अवार्ड क्या होता है। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है अवार्ड मिलता है कंप्यूटिंग में नए इनोवेशन, कोई भी नए इनोवेशन के लिए, उसको नोबेल ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। अब इवोल्यूशन के बाद अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब इसको भी आप ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देख सकते हो। हार्डवेयर क्या हुआ, समथिंग टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, जैसे आपके हाथ हो गए, आपके कान हो गए, आपकी आंखें हो गई, आप इनको देख सकते हो, आप इनको टच कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर क्या हुआ, आंखें हैं आपकी हार्डवेयर, लेकिन उससे जो आप देख रहे हो जिसे आप विजन कहते हैं वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अगर आपकी विजन नहीं है तो आंखें किसी काम की नहीं है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं, हार्डवेयर के एग्जांपल हम ले सकते हैं, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये तो आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, जो भी टच और फील कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर हो गया, जो आउटर कंपोनेंट है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज़ होगा या उबंटू होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या आपके फ़ोन में एंड्रॉयड होगा या फिर iOS होगा, जो भी आप यूज़ करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, जैसे आप कोई भी एक हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ एक CD आती है। जब वो CD के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तभी वो हार्डवेयर फंक्शनल होगा। जैसे कोई भी आप प्रिंटर भी अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ एक CD आएगी, आपको उसके ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो वर्केबल होगा। तो वो ड्राइवर्स होते हैं। तो ये ब्रॉड डिवीजन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अब हम बेसिक्स में जाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। तो हार्डवेयर अब कौन से होते हैं, एक तो इनपुट वाले हार्डवेयर जिनसे हम कोई भी डेटा या कमांड कंप्यूटर में डालते हैं। कुछ होते हैं प्रोसेसिंग वाले, अब जो कमांड डाला उसको प्रोसेस करने के लिए उसके लिए अपने हार्डवेयर हैं। और उसके बाद आउटपुट के लिए अपने हार्डवेयर हैं, जो कि जो रिजल्ट आया वो आपको शो करेंगे। तो क्वेश्चंस EPFO में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है और इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको हार्डवेयर पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हम जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब जो हैं इनपुट हार्डवेयर हैं। CPU के जो पार्ट होते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी, ये भी हार्डवेयर हैं। एंड आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले, मॉनिटर, टीवी, वीडियो, प्रिंटर, मैगजीन टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सब हार्डवेयर है। तो आपको ये सब हार्डवेयर की जो है लिस्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच ऑफ दिस आर हार्डवेयर और विच ऑफ दिस आर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर डिवाइस हो गया, आउटपुट हो गया। अब हम डिटेल में बात करेंगे CPU की। तो CPU को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे प्रोसेसिंग के काम करता है वो CPU ही करता है। अब ये करता क्या है, ये सबसे पहले सारे प्रोसेसिंग के काम करता है। अब CPU के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो पीछे हमने देखा था 3 कंपोनेंट थे, एक था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक था कंट्रोल यूनिट और एक था मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। तो
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, जैसे नाम से पता लग रहा है, सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कंप्यूटर में हम जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस कराने चाहेंगे तो वो ALU करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करने के लिए गाइडलाइंस देता है बाकी पार्ट्स को, इसको ALU को। और प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोरेज करना। और कंप्यूटर में कोई भी काम होता है, कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, वो प्राइमरी मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होता है। अब मेमोरी होता क्या है, मेमोरी को हम अपने ब्रेन से समझ सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन में हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, तो जो चीज़ें हमने याद कर ली वो तो हमारे दिमाग में बैठ गई, वो होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी, वो हमारी इंटरनल है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती क्योंकि माइंड का भी लिमिटेशन है, तो उसके लिए हम या तो नोट्स बना लेते हैं या PDF बना लेते हैं, जो भी है वो उसको हम बाद में ताकि यूज़ कर सकें, तो वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सिमिलरली जो CPU की अपनी इंटरनल मेमोरी है वो तो हो गई प्राइमरी मेमोरी, और जो हम बाहर से कोई और डिवाइस के साथ उसकी मेमोरी को इंक्रीज़ करें तो वो होगी सेकेंडरी मेमोरी, या उसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के साथ CPU डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब CPU कोई भी कमांड देगा, कोई भी फंक्शन करेगा तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही करेगा। और इसके साथ सेकेंडरी मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो हम कोई भी जैसे USB लगाते हैं तो पहले उसमें से कंटेंट प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही वो काम का होगा। जैसे कोई भी आप फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डालते हो तो पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपकी प्राइमरी मेमोरी में। अगर वो आपकी USB में इंस्टॉल्ड है तो वो आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों हो सकती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाए। अब जैसे आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो तो वो एक वोलेटाइल का एग्जांपल है कि आपने हाथ में डाला, थोड़ी रब किया और वो गायब हो गया थोड़ी देर बाद। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि वो यूज़ करने के बाद भी वहीं पे टिका रहे, तो वो परमानेंट होता है। तो ऐसे तरह प्राइमरी मेमोरी भी या तो वोलेटाइल हो सकती है या नॉन वोलेटाइल हो सकती है, मतलब या तो नॉन परमानेंट या परमानेंट। जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमेशा नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। जैसे हम पेन ड्राइव में कुछ स्टोर करें, जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक वो हटेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, तो वो फिक्स हो गया, तो वो नॉन वोलेटाइल हो गया। अब प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होती है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है। सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कि हम पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, CD यूज़ करते हैं, DVD, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा, ये सब जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं, क्योंकि हम ये बाहर से इंस्टॉल करते हैं, ये CPU के अंदर नहीं है। अब प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से पता है, कभी भी जिसका रैंडमली CPU एक्सेस करता है, मतलब रेगुलरली यूज़ करता है। और एक होता है रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ सेविंग के लिए होती है डेटा, इसमें कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी, मेमोरी दैट इज अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस टू बी यूज व्हेन कंप्यूटर इज रनिंग। तो जब कंप्यूटर रन कर रहा है तो उसमें जो भी प्रोग्राम और प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब कहाँ पे होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और रीड ओनली मेमोरी क्या हुआ, मेमोरी दैट इज प्री रिटन टू होल्ड द इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें परमानेंट जो पहले से इंस्ट्रक्शन है, पहले से जो भी डेटा है, वो एक बार बस बूट करने के लिए इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो होगा हमारा रीड ओनली मेमोरी में। अब और डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो है रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डेटा रखने के लिए, इसमें नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपने एक वर्ड ऑफिस की फाइल खोली, उसमें आपने कुछ टाइप किया। अब आपने टाइप किया तो वो कहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि सारे फंक्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी में हो रहे हैं तो अभी तक वो रैम में है। अब अगर आप उसको सेव कर देते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेव करेंगे तो वो रोम में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने बिना सेव किए उसको हटा दिया तो वो गायब हो जाएगा, उसके बाद वो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रैम में चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं रहती हैं, वो जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो रहेंगी, जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ वो गायब हो जाएंगी। इसलिए हम कोई भी चीज़ पहले स्टोर करते हैं अगर उसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो, ताकि वो रोम में चली जाए। ओके, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ये तो आपको पता लग ही गया। वोलेटाइल है, ये पता लग गया। और इसमें क्योंकि ये टेम्परेरी है तो इसलिए डेटा जो है इसको फास्टर चाहिए, क्योंकि CPU के साथ जो इंटरेक्शन है, CPU काफ़ी फास्ट काम करता है। अगर CPU के साथ काम करना है तो मेमोरी को भी फास्ट होना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें डेटा का कॉपी और एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है, जबकि रोम में काफ़ी स्लो होता है। तो
जो अब आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनमें मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप कितने होते हैं। अब इसके बाद हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इसके कंप्यूटर सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स को भी करेंगे। उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो जो भी अभी तक आए हैं, और कुछ और क्वेश्चन एडिशनली मैं आपको दूंगा सोल्व करने के लिए। उसके अलावा जो जो भी वो कंप्यूटर वोकेबलरी के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी एक लिस्ट आपको हर चैप्टर के एंड में मिलेगी ताकि आप उसको साथ साथ ही याद कर सकें। तो ये सब लेक्चर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेंगे। ऑफलाइन के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप यहाँ आके हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और वेलकम टू एस्पायर आईएएस चैनल। वेलकम टू दिस ईपीएफओ क्रैश कोर्स। जैसा कि सबको पता है, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी आने वाला है, 2 महीने में, ये आई गेस मई फर्स्ट वीक में, 9th में। एंड उसमें उसके सिलेबस पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इन सब का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 50 क्वेश्चंस आएंगे। एंड इस बार जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है तो आई थिंक कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक 120 क्वेश्चंस थे और इस बार इट इज़ बीन एक्सपेक्टेड दैट 100 क्वेश्चंस आएंगे। So let us start. First, let me introduce about myself. I am Pratik, and I have cleared many banking exams. So that is why I am here to teach English, general English, as well as general mental ability and quantitative aptitude. Plus, I'll also teach you history. तो अब कोई भी एग्जाम हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हैं। एग्जाम के नोटिफिकेशन में ये देखते हैं एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है, और सिलेबस में हम लोग वेटेज देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो हम लोग इस जो लेक्चर है, डेमो लेक्चर, इसमें हम यही देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड इन सब का क्या क्या वेटेज रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एस्पायर आईएएस की वेबसाइट खुली हुई है, www.aspireias.com आप जा सकते हैं एंड यहीं पे आपको मिलेगा ईपीएफओ क्रैश कोर्स। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे 2 इयर्स के, एंड साथ में आपको उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे हम लोग सीधा जंप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और हम लोग इंग्लिश का ये करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इन ऑर्डर टू लर्न दैट यू विल हैव टू फर्स्ट रीड मेनी बुक्स, बट नॉट नेसेसरीली फॉर दिस एग्जाम। अगर इस एग्जाम में हम लोग स्ट्रेटेजिकली भी पढ़े और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें इंग्लिश के, सो वी कैन स्कोर अराउंड all the questions with 80% accuracy, 90% accuracy, which is fine for an exam, because English में 20 questions आते हैं। तो अगर 20 questions में हम लोग 18 questions, 16 questions भी अगर solve कर लेते हैं तो well and good। तो इसमें जैसे एक मिनट, ये हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है 2012 का इंग्लिश का ईपीएफओ क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम लोग सीधा जाएंगे 2017 पे, क्योंकि हम लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है, इसलिए 2017 हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग पीछे से जाएंगे, दैट इज 2015 एंड 2012। सो दिस इज इंग्लिश ईपीएफओ 2017। ये है 2017 का ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन गोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। तो हमें सिनोनिम फाइंड करना है फंडामेंटल का। तो ऑब्वियसली कि ये सब कुछ क्वेश्चंस जो है ईपीएफओ में हमारे बेसिक जो स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, एंड स्टैंडर्ड 1st से लेकर 10th तक जो हमारी इनेट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंग्लिश, विच इज फॉर एवरीवन अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट स्टडीड इन द इंग्लिश मीडियम। अगर नहीं भी पढ़ा है, लेकिन इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंग्लिश इज एंड द बेसिक क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि दिस। फंडामेंटल मतलब ऑब्वियसली सक्सेसफुल तो नहीं होगा, इफेक्टिव भी नहीं होगा, प्रोडक्टिव भी नहीं होगा, तो ये तो मतलब बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चंस में आएगा ये। तो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि which one of the following is the synonym similar of the word written in the capital letters in the sentence she has the habit of using hackneyed and redundant examples of her past even while dealing with her future generation।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट दिस लाइन इज अबाउट, तो इसमें कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। सो अब तक के 2 क्वेश्चन हुए, लेकिन हमें कोई भी इंग्लिश का ना ग्रामर पढ़ना पड़ा, ना हमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े, हमें बस हमारी जो कॉमन सेंस है या फिर हमारा जो 10th स्टैंडर्ड तक के हमने पढ़ा हुआ है या अभी तक हमने जो भी रिसेंटली हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें जितना भी हमारा नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसी के बेसिस पे हम लोग 20 में से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन असली जो मजा आएगा वो आएगा बाकी का 8 क्वेश्चंस में, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। इतना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसमें अगर हम लोग कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो शी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनीड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने बोला है कि इसमें सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना है कि हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है, कि उसे आदत है अपने लाइफ के रिडंडेंट, मतलब जो अभी यूज नहीं हो रहा है, रिडंडेंट एग्जांपल्स यूज करने के वाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसे टाइम पे क्या है, हैकनीड एंड रिडंडेंट में इंडिफरेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि इंडिफरेंट मतलब होता है कि कोई मतलब फर्क ना पड़ना ऐसे। सेकेंड है इमेजिनेटिव, ये हो सकता है, चलो ठीक है हम कंसिडर करते हैं अगर हमको आंसर नहीं पता हो। इंप्रेसिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वही निगेटिव टोन में है, थोड़ा सा निगेटिव इंक्लिनेशन है इसका, तो इंप्रेसिव भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, 2 ही, इमेजिनेटिव एंड क्लीशेड। इमेजिनेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग रिडंडेंट एग्जांपल्स फ्रॉम अवर पास्ट कह रहे हैं, तो पास्ट मतलब प्रेजेंट लाइफ, मतलब ऑब्वियसली पास्ट मतलब वो लोग कहेंगे कि भाई जो इमेजिनेटिव नहीं है, जो रियल है, तो ऑब्वियसली इमेजिनेटिव भी नहीं आएगा, तो आंसर आ गया क्लीशेड। इसमें हमें ना इंग्लिश पढ़ना पड़ा, ना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इंग्लिश की, फिर भी हमने आंसर सही से मार्क कर दिया। तो इसी लॉजिक के साथ में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू ईपीएफओ बैच हम लोग कवर करेंगे। सो 1 मिनट, अब बाकी का मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद में आता है ये, जैसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इमैक्युलेट, आई डोंट थिंक कि मेनी पीपल वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इमैक्युलेट, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं, या तो सिनोनिम आएंगे, या तो एंटोनिम आएंगे, या तो एक्सप्रेशन के मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो ऑल द 20 क्वेश्चंस विच वर इन द 2017 यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे जिसमें बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जो स्कोर करना पॉसिबल है। तो सोचिए अगर आप इंग्लिश क्वांट में ही अगर आप ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, जो कि क्वांट में क्वेश्चंस आएंगे अराउंड 15 एंड इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे 20, तो अगर आप 35 क्वेश्चंस यही पे क्लिक कर लेते हैं आपके, और 35 में से 30 भी करेक्ट होते हैं, तो भी आप मतलब यू आर अहेड ऑफ द रेस। तो ये एक क्वेश्चन है सिनोनिम का। फिर उसके बाद में एंटोनिम वाला एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आता है सिमिलरली एंटोनिम, फिर उसके बाद में एंटोनिम, फिर सिमिलरली, यही चीज। अब यहाँ पे और एक चीज, ये तो हो गया सिनोनिम एंटोनिम का, तो अराउंड 6 क्वेश्चंस है जो सिनोनिम एंटोनिम पे वो लोग पूछेंगे। तो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिनोनिम एंटोनिम्स एंड आई विल आल्सो यूज दैट टर्म विद यू इन रेगुलर टॉकिंग, सो दैट जो क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी होगी एंड इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज एज यू ऑल नो, तो जो लोग आप यूज नहीं कर पा रहे, मुझसे आप इन क्लास भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि मैं क्लास में ही आपको बता दूं उसके मीनिंग्स जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, एंड यूल द क्लास विल बी इंटरैक्टिव, क्योंकि आपको हो सकता है आपको वो नोट्स में ना याद आए, लेकिन क्लास में अंडरस्टैंडिंग में वो आपको याद आ सकते हैं ना। तो ये एक चीज़ अच्छी बात है इस क्लास की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे भी लेक्चर्स, मैं जब स्कूल में था तो मैं भी ऐसे ही करता था, या मैं जब द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स। तो ऐसे ही हम लोग क्लास भी प्रोसीड करेंगे। सेकेंड जो पार्ट आता है जो क्वेश्चन का इंग्लिश में, वो आता है ये, दैट इज एरर फाइंडिंग का, कि ये एक लाइन दिया होगा और आपको बोलेंगे कि भाई इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 1 सेकेंड। सो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड। अब इसमें हमें ग्रामेटिकल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि ये हम नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते, या वी डोंट टॉक यूजुअली इन दिस लैंग्वेज, और वी डोंट टॉक यूजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट। सो दैट इज वाई ऐसे जो क्वेश्चन है उसे हमें ग्रामेटिकल रूल से सॉल्व करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड, इसमें आंसर है ये दैट द इग्नोरेंट। वाई? बिकॉज ये जो है ना दैट, ये अगर हम लोग नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा। सो दिस इज रिडंडेंट,
ठीक है, या अननेसेसरी, या हम लोग यूज नहीं कर सकते इसे, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इस वजह से हम इसे, ये जो है ना सेकंड आंसर, ये इस वजह से आता है। तो ये चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं लगेगी। ये अगर आपको ग्रामेटिकल पता है या फिर आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है कहीं से, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटेड गेस से, वरना इसमें ग्रामेटिकल रूल्स पता होना जरूरी है। सो ये तो हो गया 7th क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सिमिलरली एरर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी एरर वाला क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद में अब सब्स्टिट्यूट। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बाकी के, जैसे बाकी के भी जो टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स है हमारे, जैसे अंकित सर है, वैभव है, मोहित है, ये लोग भी कुछ टर्म्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, आप लोग जब सोशल सिक्योरिटी पढ़ोगे, या तो वैभव से, या वैभव सर से, या तो अंकित सर से, तो आप पढ़ोगे ये चीज, दैट इज क्रेशे। तो जब आप सोशल सिक्योरिटी या एक्ट जब पढ़ोगे, तो उन्हें भी ये क्वेश्चंस, जो वर्ड है, वर्ड के मीनिंग आप बता सकते हो, या उनसे वहां पे अंडरलाइन करके मुझे मेरे क्लास में आप पूछ सकते हो कि व्हाट डज क्रेशे मीन। तो अगर क्रैश जो फैसिलिटी है, इसे क्रेशे भी कहते हैं, कोई लोग क्रैश भी कहते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन है, इतना ग्रामर नाजी हम नहीं बनते, ठीक है। फिर उसके बाद में नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जब बचपन में था, तो मेरी मम्मी मुझे क्रैश फैसिलिटी में ही रखते थे, क्योंकि दोनों मदर फादर वर्किंग थे, तो इस वजह से मुझे ये पता है। लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें पता होगा थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, थ्रू अदर लैंग्वेजेस और थ्रू अदर रीडिंग्स जो वो लोग रेगुलरली करते होंगे द हिंदू में। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी क्लासेस है वो सारी इंटरैक्टिव है और सारी इंटर रिलेटेड है। तो जो इंग्लिश आप पढ़ोगे सोशल सिक्योरिटी क्लास में 12 से 2 पे, उसमें से आप वर्ड्स ढूंढ के निकालेंगे और अलग से आप एक कॉपी में बना के लिख देंगे, ताकि मैं उसका आंसर आपको बता सकूं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है कि व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। इसका मतलब है इम्प्रेग्नेबल। अब इसका लिंकेजेस हमको हिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि इसका लिंकेजेस जो है आपको हिस्ट्री में मिलेगा। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे थे मिडिवल इंडिया में जो इम्प्रेग्नेबल थे, तो वो लैंग्वेज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो समझ रहे हो, मतलब इंग्लिश इज नॉट हैज नॉट टू बी स्टडीड इन एन आइसोलेशन, इंग्लिश हैज टू बी स्टडीड वाइल स्टडीइंग विद अदर लैंग्वेजेस लाइक सोशल सिक्योरिटी, जो भी इसका सिलेबस है। इसीलिए, और इंग्लिश मतलब डेली लाइफ में भी आपको इंग्लिश यूज करना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो पता होनी चाहिए कि आगे वाले को आप अपनी जो भाषा है वो कम्युनिकेट कर सको व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिर 12th में आप ये 1 मिनट, ठीक है, अच्छा ये पीछे चले गया। तो 12th में अगर आप देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस टेक अ सीट, इसका आंसर होगा वोंट यू। लेकिन ये सब सिमिलरली ग्रामेटिकल लॉज इसमें अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद में ये तो इजी है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन टैग यूज करना होता है, उसमें मोस्टली या तो हम लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। तो इसी को क्या करना है, ट्रिक या ग्रामेटिकल यही बता दो आप, ट्रिक ही देख लो, कांट दे, ठीक है। एनीवन है तो इसका मतलब है मोर देन वन, मल्टीपल पीपल है, 10-15 जितने हो सकते हैं। एंड कांट दे मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा कैन वाला, उसी का आपको अपोजिट वर्जन जो है वो लिख के मार्क करके आना है। सो ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया विदाउट इवन नोइंग द बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। लेकिन मैं इसमें ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर सिमिलरली हम लोग अब फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, उसमें भी कट आउट मतलब वही एक्सप्रेशन का आंसर आपको पता चलेगा। तो एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आई ऑल्सो यूज दोज थिंग्स इन माई रेगुलर टोन सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड आई विल बी एबल टू टीच यू इफेक्टिवली। फिर उसके बाद में सिमिलरली ये भी सब 3 सिमिलर पैटर्न में ही है। फ्रेजल वर्ब्स, 16 क्वेश्चन हो गए फ्रेजल वर्ब्स। फिर उसके बाद में सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूट, ये भी पहले जैसा। ये तो जैसा अगर आप देखोगे 2017 का पैटर्न, उसमें जो इंग्लिश है उसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक तो सिनोनिम एंटोनिम, दूसरा है एक्सप्रेशन या फ्रेजल वर्ब जिसे कहते हैं, एंड तीसरा है क्वेश्चन टैग। बस खत्म। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। 20 में से आपका 18 की एक्यूरेसी होनी चाहिए अराउंड, 2 का तो ऑब्वियसली हम लोग 10% मानते हैं मार्जिन। तो 2 भी अगर रॉन्ग हो गए तो 18 इज अ गुड स्कोर। फिर उसके बाद में ये तो हो गया इंग्लिश का जो मैं आपको बताऊंगा, और
जहाँ पे आपको ग्रामर सिखाना है वहाँ पे मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा, जहाँ पे आपको मुझे लगेगा कि नहीं प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में भी हम लोग जाएंगे अपने पुराने ही वेबसाइट पे www.aspirers.com और उस पर EPFO क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे आप, और उस पर आपको ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिलेगा। वहाँ पे मिलने के बाद आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे। वो जाने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि रिसेंट वाला ही हमें एनालिसिस करना चाहिए, वो बेस पकड़ना चाहिए। पहले के भी पढ़ेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है लास्ट 2017 का, ठीक है। अब 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि भाई धुआंधार क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार मैथ्स है तो मैथ्स मुझे आता है नहीं, तो मैथ्स में कैसे पढ़ाऊँ, मैथ्स में फॉर्मूलेज की ज़रूरत होती है, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैंने लास्ट टाइम मैथ्स पढ़ा था 12th में या 10th में, उसके बाद में मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, और फिर भी मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने मैथ्स जब पढ़ा था तब बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ा। उसके बाद में फॉर्मूलेज की ज़रूरत आई डोंट थिंक होती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है जो EPFO एग्जाम में आते हैं, most of the questions without formula, just on the basis of your understanding और common sense, और जिसे कहते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें एप्लीकेशन है मैथ्स में। तो वैसे ही मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड तो हम लोग देखते नहीं फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पढ़ाने जाओ तो और 15-20 मिनट वो पूरा फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह सब बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट नहीं, हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 2 vehicles which are 100 kilometer apart are running towards each other in a straight line, ठीक है। In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि इसमें देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, अगर आपने ये जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर आपने लाइफ में कभी पढ़ा भी नहीं है, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो भी आप ये जो सम है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B ये है 100 मीटर के दूरी पे, 100 किलोमीटर के, ठीक है। तो 100 किलोमीटर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने बोला है कि ये जो है A 45 kmph से आता है, 45 किलोमीटर पर आवर, एंड B जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एंड B जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, ठीक है। kmph है ये, ph मतलब पर आवर। तो सबसे पहले तो हमें जो गेम खेलना है वो खेलना है यूनिट्स पे। यूनिट्स मतलब कैसे है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब होता है 60 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से। ये तो बेसिक, मतलब ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि एक आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, तो ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो 45 आउट ऑफ 60 कितना होता है, और 80 आउट ऑफ 60, ठीक है। 45 आउट ऑफ 60 कितना होता है, 3/4, क्योंकि 15 से डिवाइड हो जाता है, तो 3/4 आ गया। और उसके बाद में ये है 4/3, ठीक है। और ये जो है किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कौन सा 3 किलोमीटर जाता है 4 मिनट्स में, कौन, A, एंड B जो है वो जाता है 4 किलोमीटर 3 मिनट्स में। अब ये सारी चीजें आप छोड़ दो, इतना आपको ध्यान समझ गया कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, ये जाता है 3/4 किलोमीटर पर मिनट में, एंड ये जाता है 4/3 किलोमीटर पर मिनट पे। अब हमें क्या करना है कि उसका ऑप्शन ढूंढना है कि कहाँ पे ये लोग दोनों मीट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर 4 ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे तो आंसर मार्क किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी मार्क किया हो, ठीक है, तो भी सिंपल हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये ऑप्शंस के साथ में। अगर हम 3/4 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ में, तो कितना आएगा, 3/4, यहाँ पे कर दो मैं, 3/4 इंटू 60, ठीक है। तो 4 1 जा 5 जा, खत्म, 15 3 जा 45 किलोमीटर। तो अगर ये 45 किलोमीटर आ गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो उसके बहुत आगे चले जाएगा, तो ये ऑप्शन गया। फिर उसके बाद में 45 मिनट्स हम लोग करते हैं, तो 45 मिनट्स यहाँ पे कर ले, अगर ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 3/4 इंटू 45, अगर हम लोग 45 मिनट्स करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में इंटीजर है ही नहीं, तो खत्म। फिर उसके बाद में हम लोग जब 48 करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 48, 4 12 जा 12 3 जा 36, तो ये 36 किलोमीटर जाएगा।
और 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो 3 16 जा 16 4 जा 64। इसका मतलब क्या है, ये 36 किलोमीटर जाएगा, ये 64 किलोमीटर आएगा। ऑब्वियसली 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 एंड 48 मिनट्स इज द आंसर। बस खत्म। इसमें ना हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ा, ना हमको किसी चीज की जरूरत पड़ी, बस कंसेप्ट से हमें ये जो क्वेश्चन है वो समझ गया। लेकिन इसमें करने के लिए अभी आपको लग रहा है ऐसे कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जो है मैं इसमें ये क्लास के ड्यूरेशन में आपको बता दूंगा कि कैसे राइट आंसर हम लोग सर्च कर सकते हैं, कि धीरे धीरे हम लोग बता देंगे कि 60 से डायरेक्ट हम लोग 48 पे कैसे आएंगे। तो आपको मात्र 10 to 20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जबकि एग्जाम में 100 मिनट्स मिलेंगे, 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। लेकिन उसमें भी आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो बाकी का जो टाइम है वो थोड़े डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और वही कंसेप्ट आपका यूज होगा नंबर सिस्टम में, वही कंसेप्ट आपका यूज होगा टाइम एंड डिस्टेंस में, वही कंसेप्ट आपका यूज होगा इंटरेस्ट में, वही कंसेप्ट रेशो प्रोपोर्शन में, मिक्सचर में, सारी चीजों में एक ही कंसेप्ट आएगा। तो हमें 100 फॉर्मूलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे हम मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा जो सिलेबस का सेग्रीगेशन है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम लोग सिर्फ वो कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर ले। तो अब हम लोग अपने एनालिसिस के साथ में बढ़ते हैं आगे। ये जो है ये परसेंटेज वाला ऑप्शन है। अब परसेंटेज में भी सिंपल, ये तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा तो, लेकिन ये भी परसेंटेज वाला है, ठीक है, डिस्काउंट वाला है। तो द क्रेडिट बैट इज परचेस्ड, 1 सेकेंड ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द क्रेडिट बैट इज परचेस्ड एट 20% डिस्काउंट। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने 100 रुपये में बैट, 100 उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो वहां पे सेलिंग प्राइस मतलब ये होता है कि जो प्राइस लगी हुई हो और उसके बाद में हम लोग उस पर डिस्काउंट देते हैं और फिर बाद में आता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के बाद में ये होता है 20% डिस्काउंट पे। तो ये आ गया जो जिस प्राइस पे कस्टमर बाय कर रहा है। उसके बाद में इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज ₹1000, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट बैट। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ये जो है बैट वो मिला है हमें 20% डिस्काउंट पे। अब हम लोग ऑप्शंस पे सीधा देखते हैं, कौन से ऑप्शन को में 20% माइनस करने के बाद में हमें मिलेगा 1000 रुपीज। कौन से ऑप्शन में, अगर हम सीधा इस पे जाते हैं, ठीक है, 1250, अगर हम 1250 को देखते हैं, इसका 20% कितना होता है 250, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि 125 इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय 250, तो 250 इसका है 25% और 1000 1250 में से माइनस कर दिया, ये आ गया आंसर, खत्म। इसमें मेरे को 4 सेकंड भी नहीं लगे आंसर फाइंड करने में। तो समझ रहे हो, मतलब ना मैंने इंटरेस्ट पढ़ा है, ना मुझे फॉर्मूला पता है। बाकी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस, डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है। अब ये सब फॉर्मूलेज बताने के लिए मैं बता दूंगा जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले का यूज तो एग्जाम में होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में यार हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, हमारे पास होते हैं बस कुछ सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, और वो 40 क्वेश्चंस में हमें एक्यूरेसी से हमें आंसर सॉल्व करना होता है। और उसमें हमें, अगर हम 100 फॉर्मूलेज 100 टॉपिक्स हो, 100 फॉर्मूलेज हम लोग याद नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंसेप्ट वाइज जाए। तो हम लोग जब कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमारा जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग इसे कहते हैं, वो भी हमारा उतना ही सॉल्व होता है। तो हम जब पढ़ेंगे, हमें नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप कह सकते हो। तो फर्स्ट जो 1-2 क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम में ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि जैसे कोई मल्टीप्लीकेशन है वो हम अगर सॉल्व करें, अब मुझे ये क्यों पता था कि डायरेक्टली मुझे ये 1250 से 20% माइनस कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा नंबर सिस्टम स्ट्रांग है। मेरे दिमाग में 1250 आते से इसका 10, 20, 30, 40 सब निकल जाता है दिमाग में, और जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उस हिसाब से मैं उसका आंसर भी लिख दूंगा। तो वैसे ही आपके जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स है उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देंगे, और उस बेसिस पे आपको बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो है क्वांट में भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी और टाइम भी कम लगेगा, और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब इसमें तो 4-5 सेकंड लग गए सॉल्व करने में, लेकिन इसमें क्या पता 30 सेकंड्स लगे, किसी को 40, किसी को 50। तो यहाँ पे आप टाइम सेव करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो ना, ठीक है, आपको टाइम तो
उतना ही मिलने वाला है, 2 घंटे ही मिलने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसमें आप टाइम सेव करो, जिसमें 4-5 सेकंड्स में ही आप आंसर निकाल लो, और बाकी जो टाइम है वो आप किसी और क्वेश्चन में जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देख ही रहे तो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में ये सेट्स वाला क्वेश्चन है, फिर रिमाइंडर। अब इसमें तो सबसे सिंपल है, ये देख के ही मैं आंसर सॉल्व कर लूंगा। कैसे? इसमें बोला हुआ है कि सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2। ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x to the power 7 by 31। अब इसके मतलब कोई जो जिसको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो डरता है, वो सोचेगा कि यार बाप रे x to the power 7 आ गया, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 61 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। पर बिल्कुल नहीं। अब आप अगर 2 को भी 61 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 2 ही आएगा। तो हम लोग 2 ही कंसीडर करते हैं। सबसे मिनिमम हम लोग नंबर लेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 61 से, आ गया क्या? रिमाइंडर 61। उसने क्या बोला? 2 to the power 7। अब 2 to the power 7 नहीं भी आता हो किसी को, ठीक है, तो भी आप आराम से कर सकते हो। 2 to the 4 to the, ये तो सेकेंड्स वाला है ना, ये इसलिए ये उनको बता रहा हूं मैं जिनका मैथ्स बहुत ही कमजोर है, वो भी ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल मतलब डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 2 to 4, 4 to the 8, 16, 32, 64, 128 आ गया। तो 128 इज द आंसर। 128 को 61 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 61 2 122 एंड आंसर आ गया 6। खत्म। तो समझ रहे हो, मतलब मैथ्स इज वेरी इजी, लेकिन वैसे कोई बताएगा अगर तो ही आपको पता चलेगा ना, वरना आपको कैसे पता चलेगा। तो यही सब चीजें हैं इंग्लिश एंड मैथ्स में। बाकी भी है लॉजिकल रीजनिंग एंड हिस्ट्री, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में बताऊंगा। पहले तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ेंगे साथ साथ में, एंड मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये जो 40 क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन हो। सो थैंक यू। जो एग्जाम क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 मार्च से, और रोज़ मेरा जो है क्लासेस शुरू रहेगी। 3 से 5 मेरा बैच है, एंड 3 से 5 में मैं यही सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं क्वांट के साथ में थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी बता दूंगा, क्योंकि 1.5 मंथ्स ही है, एंड थोड़े वर्ड्स याद करने में, उसे जनरल लैंग्वेज में यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिए एस्पायर आईएएस को, और शेयर करें ये वीडियोस सारी जगह, एंड सब्सक्राइब करें टू एस्पायर आईएएस, एंड क्लास ज्वाइन करें अगर जिसको भी इशू होता हो, क्योंकि यही सारी जो कंसेप्ट है वो आपका सीसेट में भी यूज़ हो जाएगा। जिसका सीसेट कमज़ोर है, या जिसका बैंकिंग एग्जाम्स कमज़ोर है, या जिनको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो सब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एस्पायर आईएएस का जो नंबर है मेरा वो है 8010069889। इस पे आप कर सकते हैं, या फिर 24/7 इसका नंबर है 8277144422। सो थैंक यू गाइज, एंड जय हिंद।